So it is the cell that we call as fundamental unit of life. Means, what do you mean by fundamental? Before this, we should know that in basically we are studying in biology portion. So first of all, you have to write what do you mean by biology. Yes, it is the part of science where we are studying about living organisms. Yes or no? Biology is a branch of science in which we study about living organisms and how they work, And how the organs of them work. okay, so write the first part, the part of science where we study living organisms. Yes, how they live, in which environment they live, what is their habitat, all these are considered in biology. Okay, is called biology. Okay, but if we consider biology, it has different branches. Means you will study detail in class 11 and class 12. Like you will study plant related chapters. They are considered in the plant related topics. They are considered as botany. Yes, and animal related chapters, animal related topics, they are considered as zoology. Before that, in this point, write a extra point that the father of biology. Father of means this is the scientist who have a large number of contribution towards biology. इसी ने बहुत सारे चीजों का कंट्रीब्यूशन इसी का है जो कि साइंस में बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं. क्लियर? लाइक प्लांट्स के बारे में, लाइक एनिमल्स के बारे में. क्लियर? फादर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज एरिस्टोटल. Clear? He was the first person to study about animals and plants in detail. Is it clear? Hello? Yes, sir. Yes, sir. That's why Yes, sir. he is considered as founder of biology or father of biology. Basically, father किसे बोलते हैं? जो कि इसके फाउंडर होते हैं. Clear है? So in case of biology, we have further parts. We have botany. Yes or no? And we have zoology. In botany, what we study? The branch of biology where we study about plants or animals. Sir, plants. Sir, plants we study. About plants and their related structures. Is called botany और zoology. इससे पहले क्या आपको ये मालूम था कि बॉटनी किसे बोलते हैं? Yes, sir. Yes. क्या इसके बाद आप भूल जाओगे? No, sir. Yes. हाँ, नहीं भूलने का तरीका, अगर आप चाहते हो कि आप कोई भी चीज ना भूलो तो you have to revise and revise and revise. Means you have to do revision as much as you can. Will you? Everyone? Yes, sir. Yes. Next we have zoology. Next we have zoology. In zoology, what we study?
So we study The about study on animals. Okay, before that, we have a scientist known as Theophrastus. Theophrastus. सर उसका सरनेम एस से कुछ था ना, शार्लिन इसका थियोप्रेसस ऐसा ही कुछ था, मुझे याद नहीं। we will study the names of the scientists in later part in details. Okay, Yes, sir. we have also a chapter that is diversity, where we study about all the living organisms which are existing in the universe. Yes, Theophrastus. Theophrastus. He is considered as father of botany or zoology. Botany. Father of botany. Means he is the founder of botany. Means he study the plants in details. That's why he is considered as founder or the father of botany. Means Sir. in case, sir. Sir, Theopetros was a student of Aristotle. Very good. In next point, I gonna explain this, but you have already told. Thank you. Theophrastus, as you are the students of different teachers, if your teacher is a scientist and some of students are following their teachers, like in case of higher studies, जो scientists वगैरह study करते हैं, they have their fellows. So they also want to follow their steps, what they are going to take. So Theophrastus is a student of Aristotle. तो वो फादर ऑफ बायोलॉजी तो थे ही थे, साथ में फादर ऑफ जूलॉजी भी थे, क्योंकि उसने पूरे के पूरे एनिमल्स के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर दिया था एंड पूरे का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में एक जनरल व्यू दिया था और एनिमल्स के बारे में खास तौर से उसने फोकस किया था, इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी है और फादर ऑफ जूलॉजी है. क्लियर है? whereas in case of Theophrastus, he only focused on the detailed study of plant and their related structures. That's why he is known as founder or father of botany. The name is Theophrastus. Is it okay to everyone? Next, we have zoology. In zoology, the branch of biology, where we study about plants or animals. About animals and their related structure is called zoology. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes. Should I move to next? Yes, sir. Everyone done? Yes, sir. Write the next point in this, that father of zoology. Same will be the answer, that is Aristotle. Yes, Om Kakade? Yes, sir. Father of zoology as well as father of biology. This title belongs to अरस्तु. प्यार से उन्हें क्या बोलते हैं? अरस्तु बोलते हैं. नाम क्या है? एरिस्टोटल. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? और ये कोई आपके मॉडर्न जमाने के साइंटिस्ट नहीं है, ये बहुत एंशिएंट, बहुत पुराने जमाने के साइंटिस्ट है. लाइक वी आर when we are talking about the dates in BC, before Christian era, whatever the dates are available. Yes, हाँ जी. So in next we will study about, in biology we study about living organism. Yes or no? So in next we will have a detailed study that in one side we have living organism, other side we will have non-living organism. Living organism versus non-living organism.
whatever you have said, they are right, but they are not the defining features where you can differentiate. Okay, according to by considering these characters, these criteria, you cannot define that this organism is living or this organism is non living. Is it clear? Yes or no? Yes, sir. मीन्स कि आप कुछ वो फैक्टर्स लोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल में पढ़ाई करते हो, तो स्कूल टॉपर होने के लिए देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया क्या हो, क्या होगा, कुछ ना कुछ पैरामीटर सेट किए होंगे टीचर ने, स्कूल वालों ने, कि आपके हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट इतने नंबर आने चाहिए। यस और नो? या फिर मान लो कि आपके एनुअल फंक्शन में, आपके जो फाइनल डे स्कूल में सेलिब्रेट किया जाता है, उसमें क्या होता है ना कि एक सर्टेन मतलब कुछ बच्चों को कुछ अवार्ड दिया जाता है, और उस अवार्ड को पाने के लिए मान लो कुछ स्कॉलरशिप दिया जाता है, तो उस स्कॉलरशिप को इफ यू वांट टू गेट दैट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप, you will have to follow or you will have to come in certain criteria. The criteria can be that you will be a disciplined boy, you will be a disciplined student. In next, you must score at least 95 marks in each subject. Yes or no? And you have to be extraordinary in extra curricular activities and co-curricular activities. Like in sports, you have to be in much more above level. So there are, I mean to say, there are certain criteria. कि कुछ क्राइटेरिया स्कूल वालों ने सेट किया होगा, और आपको ये कहा होगा कि जिनके इन क्राइटेरिया इनके पास होएगी, जिनके पास ये पाया जाएगा, दे विल बी गिवन दिस काइंड ऑफ प्राइज। क्या बात सबको समझ में आई, हाँ या ना? Yes, sir. तो मतलब ये पूरे स्कूल Yes, के लिए ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगी। उसी तरीके से तो इन द लिविंग वर्ल्ड we should have certain criteria, we should have certain characters, we should have certain features through which you can differentiate a living organism as well as non living organism. Means कि अगर आपने कुछ क्राइटेरिया सेट किया जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग के लिए हो, मीन्स नॉन लिविंग में नहीं पाई जानी चाहिए और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तभी तो आप कहलाओगे कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है, दूसरा वाला नॉन लिविंग है। अब मान लो आपने कोई क्राइटेरिया ऐसा सेट किया जो लिविंग में पाई जाती है और नॉन लिविंग में पाई जाती है, क्या आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो? आप अगर किसी चीज को डिफरेंशिएट करोगे तो उसके लिए आप कुछ सर्टेन कैरेक्टर्स लोगे कि इसके बिना पर मान लो कि आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, लाइक यू हैव 40 स्टूडेंट्स, ओके, एंड आप इसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बांटना चाहते हो, तो एक क्राइटेरिया बहुत सारा है कि एज का होगा, लाइक कलर का होगा, लाइक कौन से प्लेस से बिलोंग करते हैं, लाइक कौन अगर पूरे स्कूल की बात करें तो किस क्लास से बिलोंग करते हैं। ये सुनो कि आप कौन क्लास 7 में पढ़ते हैं, क्लास 8 में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं। लाइक यू हैव क्राइटेरिया कि आपके फाइनल एग्जाम में, मतलब कि फाइनल आपका टोटल मार्क्स कितना आ रहा है, यू विल हैव सर्टेन क्राइटेरिया ना। तो उसी तरीके से लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन करने के लिए आपको एक क्राइटेरिया लेना पड़ेगा, एक फीचर्स लेना पड़ेगा, जिसको हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं डिफाइनिंग फीचर्स। क्लियर? क्या बोलेंगे उसको? डिफाइनिंग फीचर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डेफिनेशन डिफाइनिंग फीचर्स, जो आपको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंशिएट करवाएगा और लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करेगा। क्लियर? इसमें लिखिए द फैक्टर्स और फीचर्स और कैरेक्टर्स which are only found in living organism. What I said? Only found in living organism and do not have any kind of exception. What I said?
and they should not have any kind of exception. Do not have any kind of exception. What does it mean? कि मीन्स आपने जो क्राइटेरिया सेट किया है, अब देखिए छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि आप पूरे इंटायर वर्ल्ड के, पूरे इंटायर यूनिवर्स के ऑर्गेनिज्म को आप 2 ग्रुप में बांटने जा रहे हो. इसका मतलब जो आप जो फीचर्स ले रहे हो, दिस शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल. समझ में आ रही है? और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जानी चाहिए और इसका कोई एक्सेप्शन ना हो. व्हाट डज इट मीन? ये सारे के सारे लिविंग में पाई जाती हो और किसी नॉन लिविंग के अंदर नहीं पाई जाती हो. क्लियर? विल बी कॉल्ड एज डिफाइनिंग फीचर्स. क्या बोलेंगे इसको? डिफाइनिंग फीचर्स. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? आप सबके पास एनसीईआरटी है? Yes, sir. एनसीईआरटी के थ्रू आपको गो थ्रू करना है. अभी मैं क्लास के बाद क्लास के एंड में बताऊंगा. शुड आई मूव टू नेक्स्ट? Yes, sir. Sir, just Read fast. yes. Everyone done? Yes, sir. So now the terms, अब सबकी बारी धीरे आ रही है. अब आपको बोलना है कि क्या क्या डिफाइनिंग फीचर्स लेंगे. तो बोलिए, एक तरफ से बोलिए, मैं कुछ लिख रहा हूँ फिर मैं फाइनली बताऊंगा. Respiration. Once again, Respiration. respiration. Okay, what about next? Any The any more living- thing? Sir, the living organisms should born and they should die. They It's a cannot be born made. and die. Okay. What Have about some next? motion. Have some kind of motion. Once again, Some kind of motion. I'm not getting your point. Have some kind of motion. अच्छा, motion, locomotion. Okay. Next. ओम काकड़े, आप कुछ नहीं बोलेंगे? कुछ भी बोलिए जो आपको लगता है. आप अपने आसपास के लिविंग ऑर्गेनिज्म को ध्यान से देखिए और किसी नॉन लिविंग को भी देखिए कि आपको दोनों में क्या खास चीज दिखता है जो सिर्फ लिविंग में पाई जाती है, क्या खास चीज दिखता है जो आपको नॉन लिविंग में पाई नहीं जाती है. Sir, it needs to food to produce energy. Okay. It needs some type of consumption. Okay. What about next? Sanvi, do you have to say anything? Sir, I just said motion. What? I said motion. It's a motion. What about others? Triansh? Sir, मैंने वो Born second and part die. बताया था. Sir, but मुझे डाउट है. क्या डाउट है? सर थर्ड वाला जो पॉइंट है मोशन, वो जरूरी थोड़ी ना है. अभी मैंने इसको फाइनलाइज नहीं किया है ना. मतलब आपसे ये तो मैं आपकी राय ले रहा हूँ कि आप लोग क्या इनके बारे में ख्याल रखते हैं. What do you think about living? What about Harsh? Do you say anything? सर सब तो हो गया, अभी क्या बोलूं. Sir, they Sir. grow. Sir, they grow. Living Okay. organisms grow. पहली बात किसी ने थोड़ा सा मिलता जुलता बोला है. सिद्धेश, रवि, अर्नब, स्वारा, प्लीज स्विच टू कैमरा. They reproduce. ओके, अभी कम टू द पॉइंट. अभी कोई बात थोड़ा सा मतलब मिलता जुलता बोल रही है. व्हाट अबाउट नेक्स्ट? नो वन? चलो कोई नहीं. जिसने भी बोला, जो भी बोला, अच्छा Sir, बोला. they need oxygen or something like that. Right? means Plants need means carbon respiration. dioxide. means respiration. Okay, yes. Okay. जो भी बोला, जिसने बोला, अच्छा बोला और बोलने के लिए थैंक यू. चलो हम लोग डिफाइन करते हैं ना.
देखो, एक होता है डिफाइनिंग फीचर्स, जिसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। यस, जिसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। और कुछ होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जो मे बी प्रेजेंट, दैट मे नॉट बी प्रेजेंट, मीन्स मे बी प्रेजेंट और इट मे बी absent। तो जो अगर absent हो तो क्या उसको डिफाइनिंग फीचर्स बोलेंगे, हाँ या ना? नहीं बोलेंगे। नो सर। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा ग्रोथ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा रिप्रोडक्शन, द थर्ड पॉइंट विल बी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं द सेल यूनिट ऑफ लाइफ, है हाँ कि ना? इन नेक्स्ट वी हैव मेटाबॉलिज्म, you have heard this name? Yes, In sir. next we have consciousness, if you study a living organism, if you analyze an organism, we will find that it is not necessary to have growth to the entire life span of that organism. Like, क्या अपने बॉडी में टिल डेथ तक ग्रोथ होती रहती है? यस और नो? होती है। सर ओके, जो ग्रोथ अलग चीज है और रिप्लेनिशमेंट रिपेयरिंग अलग चीज है। व्हाट माय पॉइंट? आई थिंक you have confusion in repairing and growth. Sir, growth डेथ तक नहीं होती। सर Okay. ओल्ड एज में तो डीके होने लगता है ना बॉडी। डीके मींस रिपेयरिंग होते होते लास्ट में उसका कुछ मेटाबॉलिज्म कंसेप्ट है और फिर धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाती है। तो सर फिर Yes. ग्रोथ हमेशा नहीं होती है ना, टिल डेथ तक नहीं होती। हाँ, तो अभी हमने क्या बोला? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है? जो उस ऑर्गेनिज्म में पाई जाए और उसका कोई एक्सेप्शन ना हो। मीन्स लाइक अगर आपके 50 इयर्स बाद देखा जाए तो कुछ क्राइटेरिया नहीं पाए जाए तो उसको हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, एक तरफ लेते हैं हम एक छोटा सा कार्टून जो कि लिविंग है। क्लियर? ये आप में से आप अपने आप में से किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। दिस इज एन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नाम है L.O, मतलब लो। एक तरफ आपके पास क्या है? एक पहाड़ है। क्या है? पहाड़, माउंटेन्स। आप में से बहुत लोगों ने माउंटेन क्लाइंबिंग किया होगा, तो कभी ना कभी माउंटेन्स की फॉर्मेशन भी हुआ है। ये सुनो, लाइक वी हैव वोल्केनो, Yes, sir. लाइक वी हैव लावा। उसी के डिपोजिशन से तो बनता है माउंटेन्स। सैंड डिपोजिट होते हैं, ये सुनो, और इस तरीके से पूरा डिपोजिट होते होते एक माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है। तो इज द माउंटेन लिविंग और नॉन लिविंग? Sir, non-living. लेकिन ग्रोथ तो हो रही है ना? ग्रोथ हो रही कि नहीं हो रही? बोलो। Yes, sir. सर लेकिन उसमें कॉन्शियसनेस नहीं होता है। चलो अभी कॉन्शियसनेस पे आएंगे, कॉन्शियसनेस पे आएंगे। फिलहाल हम लोग बात डिस्कस कर रहे हैं ग्रोथ के बारे में। तो क्या अगर हम लोग बात करें किसके बारे में? ग्रोथ प्लांट में अनलिमिटेड और टिल डेथ तक होती है। आप कितने भी एजेड प्लांट के पास अगर जाके ध्यान से देखोगे, उसका नए पत्ते आते रहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? एवरी टाइम दे हैव न्यू लीव्स, मतलब उसमें न्यू लीव्स का फॉर्मेशन होते रहता है। तो कोई 100 साल, कोई प्लांट 100 साल जीता है, तो कोई 400 साल जीता है, कोई 500 साल जीता है, कोई पता नहीं कितने 1000 साल जीते हैं। हाँ कि ना? हाँ सर। तो मीन्स एक बात समझ में आई कि जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ किसी में हमेशा पाई जा रही है, किसी में नहीं पाई जा रही है। तो हम क्यों ऐसा क्राइटेरिया को लें जो कि कंफ्यूजन आपको क्रिएट करे? क्योंकि ये तो माउंटेन्स में पाया जाता है, लेकिन माउंटेन्स है लिविंग। व्हाट इज गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि माउंटेन्स की फॉर्मेशन क्या होती है? वोल्केनो और लावा की वजह से होती है। क्लियर? वो फिर फाइनली फ्रीज होकर जमने लगते हैं, जमने के बाद
वो एक माउंटेन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर? तो एक बात समझ में आई कि जो आपके पास ग्रोथ है इट इज नॉट डिफाइनिंग फीचर्स। क्लियर? इसलिए मैंने क्या क्या लगा दिया, क्रॉस। अब क्रॉस का मतलब क्या होता है, डेंजर। अरे होता है कि नहीं होता है, होता है ना डेंजर। हाँ, नेक्स्ट वी हैव रिप्रोडक्शन। अच्छा, आपने सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन देखा है? हेलो? नो सर। किसका? sand dunes, like if you go to desert area, like there are certain kind of for सर example, वो तो विंड की वजह से वो हाँ, ये मान लो सैंड है, ये क्या है, सैंड है। अब मान लो यहाँ पे कुछ आपने एक ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया, तो मान लो अब विंड का फ्लो इधर है, तो अब जो यहाँ का सैंड को फ्लो करते करते इधर जाएगा। तो ये जो आपका ऑब्स्ट्रक्शन आपने इसको लगाया है, तो यहाँ पर ये सैंड का फॉर्मेशन मतलब कि एक पाइल्स एक्यूमुलेशन होने लगेगा। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन। लेकिन क्या ये लिविंग है? ग्रोथ तो यहाँ पर भी हो रही है ना। ग्रोथ का सिंपल मतलब क्या होता है, नंबर में इंक्रीज करना और साइज में इंक्रीज करना, और मास भी बढ़ती है। क्लियर है? तो ये माउंटेन्स में ऐसा पाया जा रहा है, सैंड ड्यून्स में भी ऐसा पाया जा रहा है, और प्लांट्स में पाया जाता है, लेकिन एनिमल्स में अप टू सर्टेन एज तक ही पाया जाता है। अगर एनिमल्स में कंटिन्यूसली ग्रोथ होता तो जो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है इनसाइड द बॉडी, अरे उसमें भी ग्रोथ होनी चाहिए थी। लाइक वी हैव हार्ट, किसी का एक हार्ट से 2 हार्ट हो जाता, किसी का एक लीवर से 2 लीवर हो जाता, किसी का एक पेनक्रियास से 2 पेनक्रियास हो जाता। ऐसा होता है क्या? नो सर। नहीं होता। मीन्स हम लोग ये ऐसा बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ एनिमल्स जो ग्रोथ होती है और ओनली सर्टेन लाइफ स्पैन तक होती है, उसके बाद जो लॉस्ट और डैमेज टिश्यू या सेल्स होते हैं, सिर्फ उसमें क्या होती है, रिपेयरिंग होती है। मीन्स लाइफ टाइम वारंटी है, आगे ना। अरे क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू बाय अ प्रोडक्ट, उसमें वारंटी गारंटी मिलता है कि नहीं मिलता? तो इसमें क्या है, रिपेयरिंग की लाइफ टाइम गारंटी है। जैसे गारंटी खत्म, यू आर फिनिश। लिसन नो, अरे बात समझ में आ रही है? यू गोना फिनिश मतलब खत्म। सर बट ये जो माउंटेन्स है वो सब फाइनली क्या लिविंग है या नॉन लिविंग? माउंटेन, डू यू नॉट नो? सर नॉन लिविंग ही होगा ना, बायोटिक। हाँ, ये नॉन लिविंग है, क्योंकि हम लोग आगे जो फीचर्स लेने वाले हैं वो इसके अंदर नहीं पाई जाएगी, इसीलिए क्या है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग। क्योंकि आप जानते हो कि माउंटेन्स नॉन लिविंग है ना, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया ताकि आपको समझ में आए कि लिविंग नॉन लिविंग तो है, लेकिन ग्रोथ पाई जाती है। इसीलिए ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग फीचर्स। तो हम लोग आगे देखने वाले हैं कि ये कुछ 3 फीचर्स होंगे आगे, जो लास्ट के 3 फीचर्स हैं यही डिफाइनिंग फीचर्स होंगे। ये हम लोग आगे करते हैं डिस्कस। क्लियर? तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस और नो? ये दिस इज द फैक्ट कि रिप्रोडक्शन किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। क्या आप में आपके आपके जानकारी में किसी के पास ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रिप्रोड्यूस करता है? डू एनीवन हैव? हर्ष, डू यू हैव? नो श्रेयांश, डू सर। यू हैव? ओम काकरे, डू यू हैव? Is it possible कि a non-living organism reproduce? Means एक पहाड़ से 2 पहाड़ हो गया, एक माउस से 2 माउस हो गया, we have 1 पेन से 2 पेन हो गया। Getting my point? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है, हाँ या ना? लेकिन एक ह्यूमन से 2 ह्यूमन होता है कि नहीं होता है? एक एनिमल से 2 एनिमल होता है कि नहीं होता है? एक सर प्लांट 2 से, ह्यूमन से 1 ह्यूमन। हाँ, सर 2 ह्यूमन से 1 ह्यूमन। 2 ह्यूमन फाइनली वो एक होता है, फिर वो एक से दूसरे बनते हैं। Getting my point? आई मीन टू से कि अगर उस लिविंग ऑर्गन के अंदर वो प्रॉपर्टी पाई जाएगी तभी तो दूसरा आएगा। अगर वो प्रॉपर्टी ही नहीं है तो दूसरा आएगा ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ, तो एक बात समझ में आई कि सर क्या रिप्रोडक्शन वाकई में, अच्छा रिप्रोडक्शन को आप लोग कैसे डिफाइन करोगे?
हाउ विल यू डिफाइन रिप्रोडक्शन? जानते तो हैं सर रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? एनीवन? जो आता है बोलिए, ये बोलने का मौका है. The ability to produce another. Ability, once again, The ability to produce another human or anything which has the same characteristics as. Sir, for the continuation of species. for the continuation of species. Very good. What about next? अच्छा बोला, सही बोला. For the continuing of species. Very good. What about next? Simply हम लोग reproduction किसे कहते हैं? So when an organism wants to continue their generation, if a species want to continue their generation, they must have to do a process. That process is reproduction. Like एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया, पता है ना, मिल्क फॉर्मेशन में, कर्डलिंग, बाइनरी फिश, कर्ड फॉर्मेशन में, जैसे बाइनरी फिजन, एक अमीबा से दो अमीबा बनते हैं. डाउट, आपके पास मल्टीपल फिजन होती है, आपके पास प्लेनेरिया होती है. तो देयर इज सर्टेन बर्डिंग है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन है, गैम्यूल्स का फॉर्मेशन है. और बताइए, बडिंग हो गया, और फ्रेगमेंटेशन ये भी हो गया. और बताइए, मतलब रीजनरेशन. वेरी गुड. रीजनरेशन सबसे ज्यादा किसके अंदर पाई जाती है? स्टारफिश और लिजर्ड्स. स्टारफिश और लिजर्ड. अगर लिजर्ड का टेल कट गया तो वापस रीग्रो होता है. हाँ, मतलब मैंने कहा कि रीजनरेशन सबसे ज्यादा किसके अंदर पाई जाती है? स्टारफिश. स्टारफिश. आपने एक ऑर्गेनिज्म का नाम सुना होगा, प्लेनेरिया. यू हैव हर्ड दिस नेम? यस सर. कौन सा नेरिया? इट इज प्लेनेरिया. हाँ सानवी, कौन सा नेरिया? इट इज प्लेनेरिया. इट इज प्लेनेरिया. यस. सो प्लेनेरिया इज एन ऑर्गेनिज्म लाइक कुछ फ्लैट टाइप स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस तरीके से अर्थ मतलब सॉइल के कलर का होता है. इसके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत हाई होती है. क्लियर? और ये क्वेश्चन नीट पे भी पूछा गया था. मेडिकल एग्जाम होता है ना नीट का, एमबीबीएस के लिए, उसमें सवाल पूछा गया था कि हाईएस्ट रीजनरेशन किसके अंदर पाई जाती है, तो उसमें ऑप्शन था ये प्लेनेरिया. यस और नो? सर वो 1 से 2, 2 से 4 ऐसे होते रहता है. हाँ, ये होते रहता है. मतलब ये बहुत फास्ट तरीके से होता है, इसलिए बोलते हैं हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी. तो आई मीन टू से कि वी हैव सर्टेन प्रोसेस. उन सर सब अमीबा में जो सूडोपोडिया होता है वो भी एक रीजनरेशन का एग्जांपल है. अमीबा में क्या होता है? सीडोपोडिया. हाँ सर, वो भी एक रीजनरेशन का एग्जांपल है क्या? रीजनरेशन नहीं, एक्चुअली वो बॉडी उसका अमीबा क्या होता है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होती है जो फूड को इनगल्फ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. गेटिंग माय पॉइंट? फूड को इन लाइक वी हैव हैंड, तो हम हाथ से खाना खा लेंगे ना, उनके पास हाथ तो होते नहीं है. अब वो क्या करेगा बेचारा? वो अपने बॉडी का स्ट्रक्चर इतना फ्लेक्सिबल होता है कि कुछ इस तरीके से इसको फोल्ड करके वो फूड को इनगल्फ करता है और एंजाइम को रिलीज करके उसको डाइजेस्ट करता है. इज इट क्लियर? इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ देयर बॉडी पार्ट, ऑफ देयर बॉडी, क्योंकि उसकी बॉडी क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है. हाँ कि ना? सर प्लेनेरिया एक प्लेटफॉर्म है ना? हाँ, एक प्लेटफॉर्म बोलते हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं, एक जो कि काफी फ्लैट होती है. दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्लेटफॉर्म, जो हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर? डाइवर्सिटी में. ओके सर. यस, बात समझ में आई क्या? तो एक बात ये समझ में आई अपन को कि हर स्पेशीज को if they want to continue the generation, हाँ रवि, if a species want to continue the generation, then they must have to do a process, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, माइक्रोस्कोपिक हो, मैक्रोस्कोपिक हो, या छोटा हो या बड़ा हो. They have to do a process. That process is known as
Ravi Kaushik, tell me. Sir, reproduction. Reproduction. So reproduction means कि it is the process through which an organism continue the generation. Like we are the organism. If this process is not existing, then we are also we also are not going to exist. Clear? Parents, तो पेरेंट्स के पेरेंट्स एंड उसके पेरेंट्स, इफ अगर ये प्रोसेस नहीं होती तो हम सब कोई नहीं होता, मतलब हम सब क्या, पूरे यूनिवर्स में कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं होता. इज इट क्लियर? लेकिन एक बात तो है कि सर ये तो ठीक है कि स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए ये प्रोसेस को होना पड़ता है. क्या ये किसी नॉलेज में पाई जाती है? मतलब एक पेन से 2 पेन हो जाएगा, एक मार्कर से 2 मार्कर होएगा, आपके एक बुक से 2 बुक हो जाएगा. आप चाहे 1 साल रखो अपने रैक में या 50 साल रखो, क्या ऐसा होगा? नहीं होगा. लेकिन ये बात फैक्ट है कि नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती थी. क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में अप्लाई होती है? अगर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में अप्लाई होगी सानवी, तभी तो कहलाएगा डिफाइनिंग फीचर्स. यस सर. हाँ जी. जब आप लोग, आपने म्यूल्स का नाम सुना होगा, आपने हिनी का भी नाम सुना होगा, आपने हनी बी का भी नाम सुना होगा, हाँ कि ना? आपने ह्यूमन इनफर्टाइल कपल के बारे में नाम सुना होगा. आपने क्लास 8 में पढ़ा है एनिमल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबीज, टेस्ट ट्यूब बेबीज की फॉर्मेशन होती है. तुम्हें तो सब पता है. सर कुछ पता नहीं पता है, पर एनिमल रिप्रोडक्शन जरूर पता है. कोई बात नहीं, अच्छी बात है. तो मैंने क्या बोला, ये जो आपके पास रिप्रोडक्शन है कि कुछ नॉन लिविंग कुछ लिविंग ऑर्गेनिम्स के अंदर नहीं पाई जाती है. पहला एग्जांपल मैंने क्या बोला, ह्यूमन इनफर्टाइल कपल, इट में भी आइदर मेल और फीमेल. जो लोग स्टेराइल होते हैं मतलब इनफर्टाइल होते हैं, मींस दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस गैमेट. यस और नो? लेकिन क्या अगर उसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, मतलब कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, तो क्या वो नॉन लिविंग है? अरे है, हाँ या ना? नहीं सर, नहीं है. they are not living. लिविंग है ना या नॉन लिविंग है? अरे नहीं सर, जो बच्चे पैदा नहीं करेगा वो नॉन लिविंग है, ऐसा बात है क्या? चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो. यस, Yes, हाँ. sir, living है. हाँ लिविंग है. वैसे ही आपने हनी बी का नाम सुना होगा. हनी बी में अलग अलग कैटेगरीज के हनी बी होते हैं. एक तो क्वीन होती है जिनका काम होता है ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस करना. बाकी सब कुछ फीमेल हनी होती है, मतलब फीमेल हनी भी होती है, फीमेल वर्कर भी बोलते हैं उन्हें. दे आर स्टेराइल. वो सिर्फ बनाया इसलिए जाता है ताकि वो काम कर सके, बिहाइव को मेंटेन कर सके और नेक्टर कलेक्ट करके लाए और उन शहद को आप इस्तेमाल करो. जो कितना आपके काम के लिए, आपके लिए काम करता है वो. ये छोटे छोटे बच्चे, उन्हें शहद चाहिए तो मैं उनके लिए नेक्टर्स कलेक्ट करके लाता हूँ. आगे ना? अरे बोलो यार. यस सर. तो मालूम ये चला कि उनका काम सिर्फ ये है कि काम करे वो, बाकी उन्हें कुछ नहीं मिलता. मीन्स दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. क्या वो नॉन लिविंग है? हाँ बच्चों? नो सर. Means they are living. Coming to next, we have mules, we have hini. इन दोनों का फॉर्मेशन कब होता है? जनरली जब हॉर्स से मिलेगा तो हॉर्स जैसे बच्चे होंगे, डोंकी से मिलेगा तो डोंकी जैसा बच्चा होगा. क्लियर है? जब ये हॉर्स और डोंकी जब दोनों मिल जाएगा तो ऐसे केस में जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, दोज ऑफस्प्रिंग्स आर स्टेराइल. आपने क्लास 8 में एक स्पेशीज की अच्छी डेफिनेशन पढ़ा होगा. सर उन दोनों, उसको हॉर्स और डोंकी दोनों के जीन्स होंगे क्या? वंस अगेन, यस. सर वो ऑफस्प्रिंग को हॉर्स और डोंकी दोनों का जीन्स होगा. मतलब दोनों के गैमेट्स मिलने के बाद जो ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है, लेकिन वो स्टेराइल होते हैं. मींस फर्दर वो मेटिंग से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, नहीं कर सकता है. क्लियर? यस सर. यस. हाँ, तो ये बात समझ में आई कि म्यूल्स और हिनी ये हॉर्स और डोंकी कॉम्बिनेशन से बनता है. और ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो सिर्फ वर्किंग पर्पस के लिए यूज किया जाए. क्योंकि इनिशियल टाइम में क्या होता था कि डोंकी और हिनी का
वर्किंग जो क्या बोलते हैं ना हाई लोड को ट्रेवल करने के लिए, लाइक आप कहीं पे देखे होंगे कि इसको उसके थ्रू सैंड को कैरी की जाती है, या फिर कहीं मलबा वगैरह होता है उनको उनके बॉडी के ऊपर रख करके उसको कहीं बाहर फेंका जाता है, तो उनको वर्किंग पर्पस के लिए किया जाता है। क्योंकि देख गधा तो वैसे ही आलसी होता है, अरे होता है कि नहीं होता है, बहुत ही सर वेरी हमारे वेरी हिंदी में लेजी। चैप्टर भी है, दो बैलों की कथा, उसमें गधे के अच्छा, बारे दो में बार। भी जिक्र किया है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो वहां पे भी आप चलिएगा, मजा लेकर पढ़ना। हाँ, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी में। तो जो आपके पास फोर्थ होते हैं वो बहुत फास्ट बहुत फास्ट चलता है। अगर दोनों के कैरेक्टर्स को मिला दिया जाए तो जो उससे ऑफस्प्रिंग होगा तो अपने लिए फायदेमंद होगा, नुकसान का होगा? अरे तेज भी चलेगा और ज्यादा मेहनत भी करेगा। यस और नो? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब क्यों, लेकिन फर्दर उसके ऑफस्प्रिंग नहीं हो सकता, लेकिन वो लिविंग होने के बावजूद भी उसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए रिप्रोडक्शन को हम लोग डिफाइनिंग फीचर्स नहीं लेंगे। बात समझ में आई अनुश्री? हाँ सर। अगला जो इम्पोर्टेंट बात है वो है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है आपके पास? लाइक दिस इज द सेल। अरे ये क्या है? दिस इज द सेल। वेरी गुड। दिस इज द न्यूक्लियस। अरे क्या है ये? सर न्यूक्लियस। ओके। और ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अरे क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे इसके बारे में लिखिएगा आप लोग, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक मैं आपको मजे की बात बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज द ओनली केस वेयर CM इज इक्वल टू PM। गेटिंग माय पॉइंट? Cell membrane is equal to plasma membrane. अरे हुआ ना? चीफ मिनिस्टर इज इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर। हाँ, दिस इज द ओनली केस वेयर CM इज इक्वल टू PM। PM क्यों बोलते हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये प्लाज्मा से बना होता है, लिपिड से बना होता है, प्लाज्मा प्रोटीन से बनी होती है, इसलिए क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली ये क्या है? इन्वेलप है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर जिसका इन्वेलप को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल इन्वेलप या सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है? वैसे ही न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? Yes. यस। सर और ये क्या है आपके पास? दिस इज द न्यूक्लियस। अरे जब न्यूक्लियस है सर तो इसके इर्द गिर्द कुछ होगा भी? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, मतलब प्रोटोप्लाज्म भी होगा, हाँ कि ना? अब ये साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म तो होती है, लेकिन इसके अंदर कुछ छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। अरे क्या होते हैं? Vacuoles. कंपार्टमेंट। सिर्फ वो वैक्यूल्स ही नहीं होते, वो कुछ छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उन स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? Vacuoles organelles. सेल ऑर्गेनिल्स बोला करते हैं। अरे क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनिल्स। Cell organelles. तो दिस इज द साइटोप्लाज्म। यस और नो? Means it is the aqueous compartment inside the cell, mean inside the cell membrane, just outside the nuclear membrane. Are you getting my point? Yes. Clear? हाँ, और इसके अंदर क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं। और इसके अंदर क्या होती है? जेनेटिक मटेरियल होती है। अरे क्या होती है? Genetic. जेनेटिक मटेरियल, जिसके अंदर क्या होती है? जीन्स होती है, DNA होती है, हाँ कि ना? जो कि न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। अनुश्री किससे बना होता है? Deoxyribonucleic acid. दैट इज द न्यूक्लिक एसिड। ये दो टाइप का होता है, RNA होता है और DNA होता है। ये हम लोग रिस्पेक्टिव क्लासेस में सब पढ़ेंगे। अरे बात समझ में आई अनुश्री? Sir, RNA भी. हाँ, मैंने बोला एक RNA होती है, DNA, आपने सुना नहीं? अरे हाँ जी। Yes sir.
स्वरा आप क्लास में बोल रहे बेटा? हाँ सर। क्लास में हो क्या आप? हाँ सर। ओके। सानवी सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ सर। हाँ, सब ठीक होना चाहिए ना, बोलते हैं ना सब चंगासी बोलते हैं, तो चंगासी होना चाहिए। अच्छा, देखते क्या है कि दिस इज द ओनली केस वेयर सीएम इज इक्वल टू पीएम मींस चीफ मिनिस्टर इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो अगर आप किसी भी लिविंग ऑर्गन के अंदर की इस बॉडी को एनालाइज करोगे तो मिनिमम जो स्ट्रक्चर मिलेगा दैट विल बी सेल, एंड एक मिनिमम सेल का एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अगर पॉसिबल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म, आइदर इट मे बी यूनिसेलुलर, आइदर इट मे बी मल्टीसेलुलर, yes or no, either it may be unicellular, multicellular, prokaryotes, eukaryotes, they must have a set of cell organization that we call as cellular organization. किसी नॉन लिविंग के पास ऐसा नहीं पाया था, माउंटेन्स के पास ये सेल का सेटअप नहीं पाई जाती है, क्लियर है? जहां पर उसका साइटोप्लाज्म हो, मतलब उसके अंदर क्या हो, एक्वस कंपार्टमेंट हो, और इसी एक्वस कंपार्टमेंट के अंदर क्या होती है, मेटाबॉलिज्म होती है। क्या होती है? मेटाबॉलिज्म। यस और नो? मेटाबॉलिज्म क्या होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शन को लिविंग रिएक्शन हर बोलते सेल हैं, से भी छोटा एक होता है। बट दे डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। बट दे डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। बोला तो यार कि अगर सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस छोटा तो हुआ। क्या कभी आप न्यूक्लियस को अकेले घूमते हुए देखे हो? नहीं सर। लेकिन सर अरे ये एटम atom is different, atom is different from cell. Getting my point? हाँ हर्ष, यस सर। एटम इज डिफरेंट, वो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे एटम क्या होती है और उसका सर न्यूक्लियस क्या होता है। एसपीडीएफ याद है। कोई बात नहीं, वो आपके रिस्पेक्टिव जगह में, ठीक है ना? हाँ, तो मैंने क्या बोला कि जो आपके पास सेल है इसके अंदर क्या है, एक्वस कंपार्टमेंट। एक्वस मतलब वाटरी कंटेंट ना, वाटरी इन्वायरमेंट, इसी को बोलते हैं एक्वस इन्वायरमेंट। क्लियर है? मतलब ये जो पार्ट है ना, इसके अंदर क्या होती है, वाटरी इन्वायरमेंट होती है, और इसी के आपके बॉडी के जितनी भी सारा रिएक्शन होता है वो सारा का सारा कहाँ होती है, इसी साइटोप्लाज्म पे होती है। क्लियर है? तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक कंप्लीट सेट ऑफ सेल, एटलीस्ट वन सेल, किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो, किसी के पास आधा सेल नहीं होता। हाँ बेटा, आधा सेल नहीं होगा, 1/4 नहीं होगा, 1/3 नहीं होगा। हाँ रवि कौशिक, अरे बोलो, 3/2 नहीं होगा, या 2.3 नहीं होगा, या 2.5 नहीं होगा, हमेशा होगा तो 1 के मल्टीपल्स में होएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस हेलो सर। स्टूडेंट्स, रवि कौशिक Yes, बात sir. समझ में आ रही है क्या? यस सर। ये आपने डायग्राम बनाया क्या? फटाफट बनाइए। बना लिया। हाँ, तो ये जिस भी ऑर्गेन के पास, मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेन के पास सेल का एक कंप्लीट सेटअप होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि नॉन लिविंग के अंदर नहीं पाई जाती है। हाँ बच्चों? यस Yes, सर। sir. अगर इसके अंदर एक्वस कंपार्टमेंट है तो रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन को लिविंग रिएक्शन बोलेंगे, और वही लिविंग रिएक्शन को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मतलब ये हुआ कि माउंटेन्स के अंदर एक्वस कंपार्टमेंट तो पाई नहीं जाएगी, जब पाई नहीं जाएगी तो ये रिएक्शन होगा नहीं। आप ये सवाल पूछ सकते हो कि सर ये फिर लैब में हम लोग क्या करते हैं? लैब में वो रिएक्शन क्या होती है, नॉन लिविंग रिएक्शन होती है। इज इट क्लियर? और आप सिमिलर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके जो आपके लिविंग आपके बॉडी के अंदर होती है, वो सेम रिएक्शन तो लैब में कर सकते हो, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेन के अंदर नहीं हो रही है। वो रिएक्शन हो सकता है कि वो लिविंग रिएक्शन हो, लेकिन लिविंग बॉडी के अंदर नहीं हो रही है, इसलिए उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म नहीं बोलेंगे। क्लियर है? मेटाबॉलिज्म क्या होती है, ऑल द रिएक्शन दैट इज occurring inside a living organism, inside a living cell, that will be considered as metabolism. हाँ सानवी, बात समझ में आ रही है? ओम कागरे, बात समझ में आ रही है? सबने लिख लिया?
तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हर एक ऑर्गन के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, मींस एटलीस्ट वन सेल मींस हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यस, लाइक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये दोनों क्या होता है हम लोग रिस्पेक्टिव टाइम में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपके पास कॉन्शियसनेस, मींस अब तक क्या सर हुआ, सर आप मेटाबॉलिज्म एक बार समझा सकते हो? जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट कि आपके ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये वाला जो पार्ट है दिस इज द साइटोप्लाज्म, यस, दिस इज द एक्वस कंपार्टमेंट, मींस गीला कंपार्टमेंट है, वाटरी कंपोनेंट है, वाटरी इन्वायरमेंट है। और रिएक्शन होने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, वाटरी इन्वायरमेंट होना चाहिए, कभी भी रिएक्शन ड्राई कंडीशन पे नहीं होता, एक्वस होना जरूरी है। क्लियर है? यस एक्वस कंपार्ट होना जरूरी है। तो आपके बॉडी के अंदर जितने भी सारे रिएक्शन होते हैं, लाइक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, लाइक ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, क्लियर, प्रोटीन की सिंथेसिस, अरे डीएनए की सिंथेसिस, ये सारे के सारे क्या रिएक्शन ही तो है। अगर ये लिविंग बॉडी के अंदर हो रही है तो उन सेट ऑफ रिएक्शन को लिविंग रिएक्शन बोलेंगे, और उन्हीं लिविंग रिएक्शन जो कि लिविंग बॉडी के अंदर होती है तो हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म दो टाइप की होती है, एक होती है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। ज्यादा तो नहीं बोल रहे हैं? अरे सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना? नो सर। सब भेजे में बात जा रही है? यस सर। तो एनाबॉलिज्म से क्या होगा, आपके बॉडी की अच्छी ग्रोथ होगी, मतलब आपके बॉडी की डेवलपमेंट होगी। कैटाबॉलिज्म से क्या होगा, आपके बॉडी का डिस्ट्रक्शन होगा। तो एज के साथ साथ क्या होता है, जैसे आप आपके बॉडी में, अगर आपकी बॉडी हेल्दी हो रही है मतलब एनाबॉलिज्म ज्यादा होता है, मतलब पॉजिटिव ग्रोथ कब होगा, जब एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा। क्लियर है? कैटाबॉलिज्म से क्या होता है, बॉडी के अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं उसका ब्रेकडाउन होता है, लाइक फैट का ब्रेकडाउन होगा, तो आप पहले मोटे मोटे थे, गेंडे जैसे थे, अब पतले दुबले हो जाएंगे। यस और नो? अरे बोलो यार। यस सर। यस सर। हाँ, तो मतलब फैट, अगर फैट का ब्रेकडाउन होगा मींस डिकम्पोजिशन होगा, मींस कैटाबॉलिज्म होगा। क्लियर है? तो फिर आपको इतना जानना सर नहीं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म? दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। अगर आपके पास एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा तो आपके बॉडी के अंदर आपकी बॉडी हेल्दी होगी। अगर कैटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, याद रखने के लिए, कैट फॉर काटना, कैट मीन्स फॉर काटना, मीन्स कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेकडाउन। याद रख पाओगे? सर कैटायन मतलब कैटायन की तरह भी तो नॉट याद कर नॉट सकते हैं। केटाइन, नॉट केटाइन। अच्छा, केटाइन भी मैं आपको बता रहा हूँ। केटाइन किसे बोलते हैं? कटा हुआ आयन को बोलते हैं केटाइन। हाँ सर, कटा हुआ आयन को क्या बोलते हैं? कैटायन। सर केटाइन। नेगेटिव आयन को बोलते हैं। नेगेटिव आयन, अरे सर उसके अंदर कैटायन तो पॉजिटिव आयन है। हाँ वही हाँ positive। पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है ना, तो अरे उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन कट गया तभी तो पॉजिटिव आया। अरे बेटा, यस सर, भूल गया था, कंफ्यूजन। मान लो ये न्यूट्रल एटम है, क्या है? न्यूट्रल एटम है, इसके अंदर से प्रोटॉन भी इतना ही है, इलेक्ट्रॉन भी इतना ही है। आपके इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो नेट चार्ज पॉजिटिव होगा ना। अरे जिस आयन से जो आयन कट गया उसका नाम क्या होता है? कैटाइन होता है। और एनायन की फॉर्मेशन कब होती है? जब इसके ऊपर आप एक्स्ट्रा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डालते हैं तब बनता है एनाइन। ये हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. हाँ, तो तुमको मेटाबॉलिज्म समझ में आ गया बेटा? यस यस सर। हाँ, नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक आज का, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? लाइक आप जिस इन्वायरमेंट पे रहते हो, whatever the environment you are living, whatever the habitat you are living, you will show certain kind of response to your environment. That is the stimulus ना। इसी स्टिमुलस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस। मीन्स हर एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट से अपना ध्यान रखता है। लाइक बारिश होगी तो आप बचने की कोशिश करोगे, यह बात अलग है। अगर आपको बारिश, इट्स रेनिंग, तो बारिश में बारिश की मजा लेने के लिए आप नहाने जाओगे, दैट वो डिफरेंट बात है। क्लियर? लाइक आपके बॉडी में बाहर से कोई माइक्रोब्स एंटर करेगा तो आपके बॉडी की सेल्स, आपके बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म उससे लड़ेगा और उसको डिस्ट्रॉय करना चाहेगा। दैट इज द डिफेंस मैकेनिज्म। यस और नो? तो आपके बॉडी का सिस्टम जिस एनवायरनमेंट पे रहते हैं उसके जो भी एक्टिविटी होती है उसका रिस्पॉन्स देना, इसी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। लाइक
एक आपके जहाँ पे आप रहते हो सराउंडिंग में एक पेड़ है, क्या है, एक प्लांट है, यू हैव अ प्लांट इन योर इन द सराउंडिंग वेयर यू आर लिविंग। अगर धूप ज्यादा होगी, मान लो उसको पानी में कुछ नहीं मिल रहा, मतलब उसको ना भूख बोलते हैं, हंगर स्ट्राइक बोलते हैं, उसका आपने क्या कर दिया, हंगर स्ट्राइक कर दिया, तो कुछ दिन बाद प्लांट मर जाएगा ना, यस और नो। तो प्लांट आपके Yes. इन्वायरमेंटल चेंजेस से रिस्पॉन्स शो किया ना, इसी रिस्पॉन्स शो करने को क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं। लाइक मैं क्या किया, आप में से किसी को खड़ा किया और एक क्वेश्चन पूछा, आई हैव आस्क्ड यू क्वेश्चन एंड यू डू नॉट आंसर, मैं थर्ड चेक लगा दिया, आप हंसोगे रोगे? सर हंसेंगे। You will have certain kind Consciousness of, में आएंगे। चाहे आप हंसो चाहे आप रो, but you will have certain kind of response, इसी रिस्पॉन्स को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। लाइक अगर आप कोमा में चले जाओ तो क्या आप हंसोगे या रोगे, वो पता नहीं चलेगा। सर तो नॉन Sir, लिविंग डिक्लेयर कर neutral. देंगे। हाँ मैं बता रहा हूँ नॉन लिविंग में क्या है। लाइक आपका घर है, लाइक आपका घर है, आप जिस चार दीवारे में रहते हैं, द हाउस यू आर लिविंग, आप अपने हाउस को अपने अपने फाइटर से कितने भी मार दो, चोट आपको लगेगी या आपको आपके हाउस को लगेगी? सर हमें लगेगी। हमें लगेगी, मींस रिस्पॉन्स हमें आएगा, मींस रिस्पॉन्स तकलीफ आपको होगी पर हाउस को कुछ नहीं होगी। ये बात अलग है कि आपका हाउस है कमजोर तो टूट जाएगा, लेकिन उसको कोई दर्द नहीं होगा, मींस वो कोई रिस्पॉन्स आपसे आपसे बचना नहीं चाहेगा, मीन्स वो अपने उस एनवायरनमेंट से रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। मीन्स एक बात समझ में आई कि जैसे मान लो क्या है, आपने एक प्लांट का नाम सुना होगा, मैं क्या नाम है उसका, छुई में का टच मी नॉट प्लांट, नाम सुना आप लोगों ने? Mimosa. Awesome. मिमोसा Yes, sir. पेडुका, मिमोसा पेडुका, ये क्या प्लांट है, जिसे आप टच करते हो इट शोज सर्टेन रिस्पॉन्स और वो विल्ट कर जाता है, मुरझा जाता है, आगे ना। तो बेसिकली क्या है, वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उसके कुछ एक्शन से वो अपना रिस्पॉन्स शो कर रहा है, इसे रिस्पॉन्स शो करने को बोलते हैं स्टिमुलस, और स्टिमुलस का होना ही क्या है, कॉन्शियसनेस। लेकिन जो इंसान कोमा पे रहेगा वो रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा, मतलब कि एक होता है कॉन्शियसनेस, एक होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म लाइक यू, मीन सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में पाई जाती है, जो खुद का देखभाल कर सके, जो खुद का देखभाल कर सके, आगे ना, दैट इज द सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस जब आप कोमा में होते हो तब खत्म हो जाती है, क्योंकि वो ब्रेन डेड होता है, वो मशीन के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। लेकिन उस टाइम में भी अगर आपके बॉडी में कोई माइक्रोब बॉडी में एंटर करेगा तो आपके बॉडी के मैकेनिज्म उससे लड़ने की कोशिश करेगा, चाहे वो हारे या जीते, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन रिस्पॉन्स शो करेगा। पहले बहुत बार ऐसे कर चुका है। वंस अगेन, किसने बोला बेटा? सर वो मैकेनिज्म का आदत हो गया होगा ऐसे करने का। हाँ, तो इस तरीके से ये काम चलता है। तो जो रिस्पॉन्स शो करेगा उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। तो आप मुझे ये बताओ कि आपके बॉडी में लिविंग, मतलब आपके दुनिया में, इस यूनिवर्स पे लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन कौन से तीन तरीके हैं? सेल्युलर Metabolism. Cellular organism, metabolism, consciousness. ये तीन फीचर्स है जिसको हम लोग डिफाइनिंग फीचर्स बोलेंगे, जो पूरे यूनिवर्स के ऑर्गेनिज्म पे एप्लीकेबल होगा और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, विदाउट हैविंग एनी एक्सेप्शन एंड एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनिज्म। दीज फीचर्स आर नोन एज डिफाइनिंग फीचर्स, जो कि हर लिविंग में पाई जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, जैसे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी इम्पॉसिबल, मतलब कि इट मे बी प्रेजेंट, इट मे बी एब्सेंट। क्लियर है? Yes. Also. हाँ सर। कोई दिक्कत? Nice.